6 اور 7 کو شب کو جو اس نے پاکستان پہ حملہ کیا، جس میں سویلینز کو، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، بچے تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، مساجد تھیں، ان کو نشانہ بنایا، اور جواباً جو اس کو ہضمیت اٹھانی پڑی، جس میں اس کے 5 طیارے مار گرائے گئے، ملٹیپل ڈرونز اس کے مار گرائے گئے، لائن آف کنٹرول میں اس کو شدید نقصان، بھاری نقصان جانی بھی اور پوسٹس کا بھی ہوا۔ ہم ہر قسم کی خطرات، ہر قسم کی ایگریشن کو نہ صرف بخوبی جانتے ہیں، نمٹ رہے ہیں، بلکہ اس اگریشن کرنے والوں کو سبق سکھانے کا نہ صرف عزم رکھتے ہیں، اس کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاک فوج ملکی سرحدوں کی محافظ۔ 7 اور 8 مئی کی رات کو بھارت نے ایک بار پھر در اندازی کی کوشش کی، دشمن کے بھیجے گئے تمام 12 ڈرونز مار گرائے۔ لاہور میں گرنے والے ایک ڈرون سے 4 جوان اہلکار زخمی ہوئے۔ میانو سندھ میں ڈرون گرنے کے باعث ایک شہری شہید اور ایک زخمی ہوا۔ بھارت کی جانب سے شہری آبادی اور مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے، بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ۔ محشر کا ہے منظر ہر جانے، کیوں رن کی زمین تھر آئی ہے، ہلچل ہے صفوں میں آدھا کی، ہر دل پر ہے بد چھائی ہے، ایک شور جنوں ہے میدان میں، اللہ کا لشکر آتا ہے، ہر مرد مجاہد کا نعرہ دل دشمن کا دہلاتا ہے۔ موجودہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں پاکستانی قوم کی دلی آواز پر نیا ملی نغمہ ریلیز۔ دل گرما دینے والی شاعری اور سحر انگیز آواز نے سما باندھ دیا۔ غالب ہیں خدا کا، وار ہیں ہم، لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم۔ پاکستان دین اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور اس کی فوج اسلام کی فوج ہے۔ پاک فوج کا موٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ترک صدر رجب طیب اردوان کی ٹیلی فونک گفتگو۔ بھارتی جارحیت کے بعد ترکیہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کی تعریف۔ بھارت کے بزدلانہ حملے نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ ترک صدر کا پاکستانی شہریوں کی قیمتی جانوں کی ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار۔ پوری قوت کے ساتھ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں، وزیراعظم شہباز شریف۔ پاکستان اپنے دفاع میں منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے۔ ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا۔ ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں ایسا طوفان برپا کیا کہ دشمن چیخ اٹھا۔ 24 کروڑ پاکستانی نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی بہادر افواج کے ساتھ ایک جری لشکر بن کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ بزدل دشمن بھارت نے نہتے شہریوں پر وار کیا، کاش غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ بھارت کو دندان شکن جواب دیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے طیاروں کے پرخچے اڑا دیے۔ ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں طوفان برپا کیا، دشمن چیخ اٹھا۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ وطن عزیز کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ بہادر اور دلیر افواج پاکستان نے ہندوستان کے مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ یہ 5 جہاز شاید
10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, उनका होश ठिकाने आ गया है। पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब, तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। रिवायती जंग में पाकिस्तान को पीछे छोड़ने के दावेदारों के लिए वाज़ेह पैगाम। 3 राफेल समेत दुश्मन के 5 जंगी जहाज मार गिराए। राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब। भारतीय तैयारों का कम्युनिकेशन निजाम लॉक। शाहीनों ने पाक सरजमीन में दाखिल न होने दिया। दुश्मन की माजी की तरह रात के अंधेरे में हमला करने की नाकाम कोशिश। बहादुर मुसल्लह अफवाज का फौरी, मौसर और मुंह तोड़ जवाब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। अमन पसंद कौम है, लेकिन हम वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत भारत की जानिब से जाहिलियत का मुजाहिरा किया गया। जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। भारत की जाहिलियत, लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कासी करती है। हम अपनी मर्जी और अपने वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का मारूफ अमेरिकी टीवी चैनल फोकस न्यूज़ और PBS को इंटरव्यू। राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को पाक फजाइया का मौसर जवाब। पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। भारतीय फजाइया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान मार गिराया गया। फ्रांसीसी एहलकार का CNN को इंटरव्यू। राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान। कशीदगी के खात्मे के लिए मदद की पेशकश कर दी। पाकिस्तान और भारत को खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करता देखना चाहता हूं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। भारत ने पाकिस्तानी सरजमीन पर जारहियत की। हमलों में निहत्थे और बेगुनाह शहरी शहीद हुए। पाक फौज दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल फौज है। भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया। दुनिया पर अपनी फौजी ताकत साबित कर दी। हमारे शाहीनों ने दुश्मन के 3 राफेल तैयारे मार गिराए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अल जज़ीरा TV से गुफ्तगू। भारत का खित्ते में तमाम हमसायों से झगड़ा रहता है। भारत को जवाब देने का माकूल जवाब है। पाकिस्तान को भारत का उधार चुकाना पड़ेगा। भारत ने दिन में 2 मरतबा शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमने भारत में शहरी आबादी को नहीं, सिर्फ मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपनी मर्जी के वक्त अब मकाम पर जवाब देना पाकिस्तान का हक है। भारत को जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार मुसल्लह अफवाज को दे दिया गया। हुकूमत, इत्तेहादी जमातें और अवाम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अहम फैसला। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 को हम वक्त मुस्तैद रहने की हिदायत। रावलपिंडी, मरी, जेहलम, चकवाल, सरगोदा, नारोवाल, गुजरावाला, हाफजाबाद, सियालकोट में मशक़ें शुरू। दीगर शहरों में भी मॉक एक्सरसाइज जारी। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर। फ़ज़ाई हिफाजत के पेश नज़र कुछ रूट्स को हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर महदूद कर दिया जाता है, जिससे इस सेक्टर की परवाज़ें मुतासिर होती हैं। मुसाफिर मामले की नज़ाकत का इदराक करें, एयरलाइन अमले से ताउन करें। मुसाफिरों की सहूलत के लिए PIA कॉल सेंटर से उनके दस्तयाब फ़ोन नंबर पर आगाह किया जा रहा है। तर्जमान PIA। मैं सबसे पहले तो अपनी अफवाज को सैल्यूट करता हूं कि हम सो रहे थे और आप जाग रहे थे। आपने पाकिस्तानी बॉर्डर का भरपूर दफा करते हुए, LOC पे गुमसान की लड़ाई करते हुए जो चौकियां थी जहां से ये शरारत कर रहे थे, तबाह कर डाली। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम 24 करोड़ पाकिस्तानी अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। हिंदुस्तान ने अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए बुज़दिलों की तरह रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान की नेफ्ती अवाम पर हमला करके
उसने अपने कमीनापन का सबूत दिया। भारत की इस जुनूनियत के आगे बंद बांधने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तमाम ममालिक को फौरी तौर पर अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए, भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए। इस वक्त हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। हम अपनी पाक फौज के एक काल पर फौरन हाजिर होंगे और शाना बिशाना लड़ेंगे और इस दुश्मन को जो मजमूम मकासद है इनको हम खाक में मिला देंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अब भी खड़े हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। बुज़दिल भारत ने निहत्ते बेगुनाह शहरियों पर हमला किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सिर्फ पाकिस्तान की बात होगी। भारत सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। पाकिस्तानी अवाम सियासतदानों सुन लो वे उलझन वाले ताने बोलो जिथे बाबे ने जन्म लिया साडा सिजदा उस स्थान नू असी मुर्दाबाद नहीं कह सकदे भुल के भी पाकिस्तान नू असी मुर्दाबाद पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी का अपने वतन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार, बुज़दिलाना वार पर भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी फौज से मिलकर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर जोर। दिफाए वतन में मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तानी सिख ने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए गाना भी गाया। भारतीय जाहरियत के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी बने दियारे गैर में वतन की आवाज। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज, बर्बरियत की पुरजोर मजम्मत। अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। पाक फौज के हक में शदीद नारेबाजी। तकनीकी मसाइल के बायस भारत में फजाई हादसात में मुसलसल इजाफा। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह, 4 अफराद हलाक। इन हादसात ने इदारे की पेशावराना और तरबियती कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। दिफाई माहिरीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए पाकिस्तानी आज़मीन हज की मक्का मुकरमा आमद। मदीना मुनव्वरा से 668 पाकिस्तानी आज़मीन पहला काफिले के साथ मक्का मुकरमा पहुंच गए। पाकिस्तानी आज़मीन हज आज अपना पहला फ़र्ज उम्रा अदा करेंगे। मक्का मुकरमा में वजारत हज के डीजी अब्दुल वहाब सुमरो ने आज़मीन हज का इस्तकबाल किया। गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, काली घटाएं छा गईं, मौसम खुशगवार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद। चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। पाकिस्तान सुपर लीग 27वें मैच में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी रावलपिंडी में मद्दे मुकाबले। मैच रात 8 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पॉइंट्स टेबल पर किंग्स दूसरे और ज़ल्मी 5वें नंबर पर मौजूद। रावलपिंडी स्टेडियम में चौकों और छक्कों की बारिश। PSL में कोटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 109 रन से हराकर छठी कामयाबी हासिल कर ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोटा ग्लैडिएटर्स ने PSL की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड भी बना दिया। भारतीय जाहरियत के नतीजे में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लिए खिराज अकीदत। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रावलपिंडी में तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों समेत मैच ऑफिशियल्स और तमाशाइयों ने खामोशी इख्तियार की। बाद में स्टेडियम में कौमी तराना बजाया गया। मैच के दौरान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था। शायकीन जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे।
سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ الہلال نے الرات الاتحاد النصر کو ہرا دیا۔ الہلال نے الرات کو 3 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی۔ الہلال کے کپتان سالم الدوسری نے ہیٹ ٹرک کی۔ الاتحاد نے کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم النصر کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرایا۔ پوائنٹس ٹیبل پر الاتحاد 71 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست، الہلال کی 65 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن۔ It's flicked on, appeals for handball, but it's fired in by Mitrovic. It's fouled Neves, it's pulled back for Malcolm. Malcolm's inside the game. امریکہ میں سالانہ سیلنگ ریس کانگریشنل کپ، سوئس کپتان ایرک مونن نے پہلی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ایرک مونن نے دفاعی چیمپئن امریکہ کے کرس پول کو 2 کے مقابلے میں 3 ریسز سے مات دی۔ مونن نے اپنی 11ویں کوشش میں یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ اور شیفیلڈ انگلینڈ میں ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ، چین کے کیویسٹ یاؤ شین تونگ نے تاریخ رقم کر دی۔ فائنل میں 3 مرتبہ کے عالمی چیمپئن تجربہ کار مارک ولیمز کو 12 کے مقابلے میں 18 فریم سے شکست دی۔ یاؤ شین نے میچ کے ایک دوران 2 سنچریز اور 11 نصف سنچریز کی بریکس بھی کی۔ 28 سالہ یاؤ شین یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے چینی کھلاڑی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور شاہد نسیم۔ اہم خبریں آپ نے ملاحظہ کی، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دینے کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات بھارت نے ایک بار پھر دراندازی کی کوشش کی۔ پاک فوج نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے تمام 12 ڈرونز کو مار گرایا۔ میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ لاہور میں گرنے والے ایک ڈرون سے 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ بھارت کی جانب سے شہری آبادی اور مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جو انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ گزشتہ رات 7 اور 8 مئی کو ہندوستان نے اپنی جاری شدہ جارحیت میں پاکستان کی فضائی حدود کو دوبارہ وائلیٹ کرتے ہوئے ہیروپ ڈرونز ملٹیپل لوکیشنز پہ بھیجے۔ پاکستان کی آرم فورسز جو کہ انتہائی الرٹ ہیں، ہائی اسٹیٹ آف ویجیلنس میں ہیں، انہوں نے ابھی تک 12 ان ہیروپ ڈرونز کو نیوٹرلائز کر چکی ہیں، جو کہ ملٹیپل لوکیشنز پہ ان کا جو ڈیبری ہے وہ اس وقت کلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو لوکیشنز ہیں یہ لاہور میں ہیں، گجرانوالہ، چکوال، راولپنڈی، اٹک، بہاولپور، میانو، چھور اور کراچی کے پاس۔ افسوس سے ایک ڈرون جو سا ہے اٹ مینیج ٹو انگیج اے ملٹری ٹارگیٹ نیئر لاہور، جس میں ہمارے افواج پاکستان فوج کے 4 فرد زخمی بھی ہوئے ہیں اور ایکوپمنٹ کو مائنر ڈیمیج بھی ہوا ہے۔ اسی طرح میانو سندھ میں ایک سویلین کی شہادت کی اور ایک سویلین کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ ہندوستان یہ جو 6 اور 7 کو شب کو جو اس نے پاکستان پہ حملہ کیا، جس میں اس نے سویلینز کو، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، بچے تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، مساجد تھیں، ان کو نشانہ بنایا، اور جواباً جو اس کو ہضمیت اٹھانی پڑی، جو اس کو نقصان اٹھانے پڑے، جس میں اس کے 5 طیارے مار گرائے گئے، ملٹیپل ڈرونز اس کے مار گرائے گئے، لائن آف کنٹرول میں اس کو شدید نقصان، بھاری نقصان جانی بھی اور پوسٹس کا بھی ہوا۔ اس کے بعد لگتا ہے کہ ہندوستان ریشنلٹی کے تمام راستے کھونے کے قریب ہے۔ یہ رات کو جو اس نے اگریشن کی ہے یہ انتہائی سیریس پرووکیشن ہے، اور آپ کی افواج نے اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جیسے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی یہ جو پروسیس ہے ڈرونز کا، ہیروپ ڈرونز کا، پاکستان کی فضائی حدود میں بھیجنے کا یہ عمل جاری ہے، اور افواج پاکستان ان کو ایک ایک کر کے انگیج کر رہی ہیں اور نیوٹرلائز کر رہی ہیں۔
अक़वाम आलम देख रही हैं कि किस तरह इंडिया ना सिर्फ इस खत्ते को बल्कि पूरी दुनिया के अमल को ख़तरे में डाल रहा है। हम हर किस्म की खतरात, हर किस्म की एग्रेशन को ना सिर्फ निमटना बखूबी जानते हैं, निमट रहे हैं, बल्कि इस एग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। जैसे जैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ती रहेगी, आई विल कीप यू अपडेटिंग ऑन इट, एंड देयर शुड बी नो डाउट that India is paying dearly, will continue to pay dearly for this naked aggression and acts. अल्लाहु अकबर, तैयार हैं हम। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनासुर में पाकिस्तानी कौम की दिली आवाज़ पर नया मिली नगमा रिलीज कर दिया गया। नगमे में दिल को गरमा देने वाली शायरी और सहरंगेज आवाज़ ने समा बांध दिया। नगमे के जोशीले बोल, गालिब हैं, खुदा का वार हैं हम, लड़ने के लिए तैयार हैं हम। महशर का है मंजर हर जाने, क्यों रंग की ज़मीं थर्राई है, हलचल है सफों में आदा की, हर दिल पर है बदछाई है, एक शोर जुनू है मैदान में, अल्लाह का लश्कर आता है, हर मर्द मुजाहिद का नारा दिल दुश्मन का दहलाता है। जो बरक़े रवां से बढ़कर हैं, वो अज़्म वफ़ा का पैकर हैं, मैदान विगा में हम गाज़ी, लम्हों में अबू के सर पर हैं, मट्टी की कसम हर दम पे हम कर देंगे ख़त्म, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने बिला इश्तियाल भारतीय जाहिलियत के बाद तुर्की की जानिब से पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत की तारीफ की। उन्होंने भारतीय हमलों की शदीद मजम्मत की, जिसमें 26 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर भारत के बुज़दिलाना हमले ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरे में डाल दिया है, जो नाकाबिल कबूल है। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी शहरियों की कीमती जानों की ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार भी किया। उन्होंने जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहते हुए पाकिस्तानी अवाम के साथ तुर्किया की यकजहती का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया और कहा कि भारत की जानिब से बग़ैर कोई सबूत फराहम किए पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को झूठ की बुनियाद पर मुलव्वस करने की कोशिशों को यकसर मुस्तरद करते हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से वाक़े की गैर जानिबदार और शफाफ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का जवाब नहीं दिया, बल्कि जारहियत और गैर ज़िम्मेदाराना रियासती रवैये का ख़तरनाक रास्ता इख्तियार किया। सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान के दरीना दोस्त के तौर पर कशीदगी में कमी के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। तुर्क कौम पाकिस्तान के सिफारती इक़दामात की कामयाबी के लिए दुआ गो है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपने अजीज़ भाई तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोन पर बातचीत हुई और मौजूदा नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान से गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती और हिमायत पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ भारत की जानिब से किए गए बुज़दिलाना मिसाइल हमलों के नतीजे में शहीद होने वाले पाकिस्तानियों के लिए तुर्क अवाम की दुआओं और हमदर्दी को कदर की निगाह से देखते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने सदर एर्दोगान को पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से भारत के हमले को मुअस्सर अंदाज में नाकाम बनाने के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी अफ़वाज ने पेशावराना महारत और बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को पसपा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार है। My all support with your team and hope that you will make better PRCS in Khyber Pakhtunkhwa also. Thank you very much. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी खिताब कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। मुसल्लह अफ़वाज को भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है। वक्त और जगह का इंतखाब हम खुद करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने अल जज़ीरा टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी सरजमीन पर जारहियत की गई, जिसके नतीजे में बेगुनाह मासूम शहरी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि हमारे शाहीनों ने दुश्मन के 3 राफेल तैयारे मार गिराए। पाक फौज दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल फौज है और हमने दुनिया पर अपनी फौजी ताकत साबित कर दी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मोदी ने पहलगाम वाक़े को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आर्मी बिरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि भारत को जवाब देने के लिए हमारे पास माकूल जवाब है, ताहम भारत में आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। निजी टीवी से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने बुध के रोज़ कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम हमने भारत में शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत का उधार चुकाना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान जंग करना नहीं चाहता, ताहम अब भारतीय जारहियत के बाद जवाब जरूर दिया जाएगा। अपने मीडिया इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इस हमले से पहले भी भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात का मुतालबा किया है। भारत ने अभी तक हमले से मुतालिक कोई सबूत पेश नहीं किए। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान जवाबी हमले का हक रखता है। हम अब भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की फर्जी मशकों का आगाज कर दिया गया है। सूबे भर के छोटे बड़े शहरों में शहरी दिफा की मशकें की जा रही हैं। रावलपिंडी, मरी, जेहलम, चकवाल, सरगोदा, नारोवाल, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, साहिवाल, पाकपतन, मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, लिया, विहाड़ी, हाफिजाबाद और दीगर शहरों में सिविल डिफेंस की मशकें जारी हैं। मरियम नवाज ने जिला इंतजामिया को सिविल डिफेंस एक्सरसाइज की मॉनिटरिंग करने की हिदायत की है। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त मुस्तैद रहने की हिदायत की गई है। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। तर्जुमान PIA के मुताबिक रूट्स की आर्जी बंदिश मुल्की एयरलाइंस के असासों और मुसाफिरों की अपनी हिफाजत की खातिर किया जाता है। मुसाफिरों की सहूलत के लिए PIA कॉल सेंटर से उनके दस्तियाब फ़ोन नंबर पर आगाह किया जा रहा है। PIA रुख तब्दील करने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों की मुकम्मल देखभाल कर रहा है, जिसमें क़याम व तआम का बंदोबस्त भी शामिल है। मुसाफिरों को PIA कॉल सेंटर और वेबसाइट से अपनी परवाज़ों से मुतालिक बर वक्त मालूमात हासिल करने की हिदायत की गई है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने लोगों को पाकिस्तान की तरफ से राफेल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराए जाने पर जश्न मनाने या जले हुए जहाज़ों की वीडियोस बनाने से रोकने के लिए पाबंदियों में इजाफा कर दिया है। KMS के मुताबिक वादी कश्मीर में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। भारतीय फोर्सेस के एहलकार तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में गश्त कर रहे हैं और लोगों को घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन को लड़ाका तैयारों समेत भारतीय फौजी नुकसानात के बारे में मालूमात शेयर करने से रोकने के लिए इंटरनेट की रफ्तार कम कर दी गई है। काबिज फोर्सेस एहलकारों की तरफ से मकबूजा इलाके में घरों पर छापों और बिला जवाज गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। श्रीनगर और मुहलिका इलाकों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय पुलिस ने मारूफ कश्मीरी सहाफ़ी हिलाल मीर को श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर छापे के दौरान गिरफ्तार कर लिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में पाकिस्तान की सरजमीन पर बुज़दिलाना भारतीय हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इन्हें मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का तसलसल करार दिया।
انہوں نے کہا کہ بھارت کی جارحیت علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے شہید ہونے والے پاکستانی شہریوں کے اہل خانہ سے بھرپور اظہار یکجہتی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے لاہور میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں بھارت کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک کی سالمیت کے لیے تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں اور پوری قوم پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے جس نے رات کی تاریکی میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ بھارتی جارحیت خطے میں امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ بھارت کی جارحیت لا قانونیت پر مبنی رویے کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان نے اس اشتعال انگیزی کے جواب میں بھرپور دفاعی کارروائی کی۔ امریکی ٹی وی چینل فاکس نیوز اور پی بی ایس کو انٹرویو میں سفیر نے کہا کہ ہم امن پسند قوم ہیں، تاہم ہم اپنی مرضی اور اپنے وقت پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ Pakistan yesterday acted in self-defense, and we, as you have seen and mentioned, downed 5 Indian fighter jets, 3 of them Rafale, 1 Su-330, and then of course the MiG-29 as well. Pakistan still reserves the right to respond to the time of its and place of its choosing. So whatever we did yesterday was in self-defense. But under Article 51 of the UN Charter, Pakistan reserves the right to respond. We are a peaceful nation. We do not want the situation to escalate. But given the blatantness of the act, we will continue to review it very closely and see how do we need to respond in the national interest, in our security interests. پاکستانی سفیر نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد بغیر کسی ثبوت جارحیت کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ عالمی برادری نے پاکستان کے غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے مطالبے کا خیر مقدم کیا۔ Prime Minister of Pakistan called it a blatant act of aggression. That's what exactly it was, because it was conducted without affording any evidence of the incident that took place in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir in Pahalgam. So it was a presumptuous pretext on which this aggression was conducted without affording evidence and also without accepting Pakistan's well-intended offer of conducting an impartial, neutral inquiry into the incident, investigation to the incident, which was generally welcomed and supported by the international community. اور ناظرین، یہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے کہ فرانس نے بھارت کے رافیل طیارے گرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ فرانسیسی اہلکار نے سی این این کو انٹرویو میں کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جب کسی جنگ میں جدید ترین رافیل طیارہ تباہ ہوا ہے۔ یہ طیارہ بھارتی فضائیہ کی جانب سے پاکستان کے خلاف کی گئی مبینہ فضائی کارروائی کے دوران مار گرایا گیا ہے۔ رافیل طیارہ گرنے کے بعد فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایویشن کے شیئرز بھی گر گئے ہیں۔ پاکستان کی فضائیہ نے تکبر میں مبتلا بھارت کو مؤثر جواب دیتے ہوئے 5 طیارے مار گرائے، جن میں سے 3 رافیل تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے مدد کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کو خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اوول آفس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ کشیدگی خوفناک ہے، دونوں ممالک سے میرے بہتر تعلقات ہیں اور چاہتا ہوں کہ کشیدگی طول نہ پکڑے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں مدد کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو اس کے لیے حاضر ہوں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ میں دونوں ملکوں کے رہنماؤں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور انہیں مل کر کام کرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ دونوں ملک اب رک جائیں گے اور معاملے کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔
नोबेल अमन इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तान और भारत से कशीदगी के खात्मे का मुतालबा किया है। एक्स पर अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के नहीं बल्कि नफरत और तशद्दुद के मुश्तरका दुश्मन हैं। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं से कशीदगी को कम करने की अपील करते हुए कहा कि वो मासूम बच्चों समेत तमाम शहरों की हिफाजत के लिए इक़दाम करें और तकसीम करने वाली कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। मलाला यूसुफजई ने आलमी बिरादरी से भी दरख्वास्त की कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए काम करे, क्योंकि अमन ही इज्तिमाई सलामती और खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक जल्द ऐलान किया जाएगा। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि गजा से मुतालिक कई तजावीज़ ज़ेर गौर है और कल इससे मुतालिक ऐलान करूंगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ, जिसमें अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विक्टॉफ ने गजा जंग और ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिकी पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक अमेरिका गजा को हमास के बगैर चलाने और वहाँ उनकी मदद के बगैर इमदाद की तकसीम से मुतालिक एक नई तजवीज़ पर काम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और गजा में काम करने वाली तमाम इमदादी तंजीमों ने इस मंसूबे को यह कहकर मुस्तरद कर दिया है। सऊदी अरब ने गजा पर गैर मुल्की तसल्लुत को मुस्तरद करते हुए कहा कि गजा और फ़लस्तीनी इलाकों पर कंट्रोल करने का ऐलान और आलमी कानून और बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़लस्तीनी इलाकों पर यहूदी बस्तियों की तोसी की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गजा और फ़लस्तीन के हक़ में तलबा ने एहतजाजी मुज़ाहरा किया। दर्जनों फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पर कब्जा करते हुए इसराइली हामी कंपनियों से सरमायाकारी ख़त्म करने और फ़लस्तीनी तालिब इल्म महमूद खलील की रिहाई का मुतालबा किया। और नाज़रीन, गुज़श्ता काफ़ी अरसे में भारत में फ़ज़ाई हादसात में मुसलसल इजाफा एक मामूल की बात बनता जा रहा है। हाल ही में भारतीय रियासत उत्तराखंड के इलाके उत्तराकाशी में एक और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। दिफाई माहिरीन ने भारतीय फ़ज़ाइया में मुसलसल हादसों के बायस उनके जहाज़ों को उड़ते ताबूत का नाम दे रखा है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 30 साल में भारतीय फ़ज़ाइया को 550 से ज़ायद फ़ज़ाई हादसात का सामना करना पड़ा, जिनमें 150 से ज़ायद पायलट्स हलाक हुए। भारतीय फ़ज़ाइया में गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान होने वाले मुसलसल हादसात ने इसकी ऑपरेशनल तैयारियों, हिफाजती मयार और पेशा वराना सलाहियतों पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। भारत का बुज़दिलाना हमला, पाकिस्तानी सिख का भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिख ने जारी वीडियो में कहा कि हमारी अवाम मुसल्लह अफ़वाद के शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि अपनी अफवाद से मिलकर भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी ने गाना गाकर पाकिस्तान से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार भी किया। सिख कम्युनिटी का कहना है कि गुरु नानक की पाक धरती से हमें बहुत प्यार है। बलोचिस्तान के इलाके सुई में बुगटी कबाइल ने भारत के खिलाफ मुजाहिरा किया और रैली निकाली। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि बुगटी कबीला अपने पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हर महाज पर इंडिया को शिकस्त दी है, भारत के राफेल भी फेल हो गए। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के हालात को ख़राब करने में हिंदुस्तान का हाथ है। रैली सुई शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी गुजरी। रैली के आखिर में भारतीय झंडा और मोदी का पुतला नजर आतिश किया गया। भारतीय जारहियत के खिलाफ मंडी बहाउद्दीन के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। फजा पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और मुस्लिम नून के ज़ेर तमाम मंडी बहाउद्दीन में पाक फौज से इज़हार यकजहती और भारतीय जारहियत के खिलाफ पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। मुकर्रीन का कहना था कि भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया और शहरी आबादी को निशाना बनाकर निहत्थे लोगों को शहीद किया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने भारत के 5 जंगी जहाज तबाह करके ये साबित कर दिया कि पाक फौज दुनिया की मानी हुई फौज है, जिसका मुकाबला करना आसान नहीं है। रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन की तरफ से हमले पर पूरी पाकिस्तानी कौम शदीद गुस्से में है। अवाम के जज्बात और अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती के इजहार के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं फरहाना खान। जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों। जाग उठा है सारा वतन, साथियों साथियों मुजाहिदों। बुज़दिली की अपनी माजी की रिवायत बरकरार रखते हुए भारत ने एक बार फिर रात की तारीकी में हमला कर दिया।
दुश्मन ने हमेशा हमले के लिए रात की तारीकी का इंतखाब इसलिए किया, उसे गलत फहमी थी कि वो जिस पर हमला कर रहा है वो रात को सो रहे होंगे। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने उनके हमलों का भरपूर जवाब देकर जहां उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया, वहीं उनको ये भी बावर करा दिया कि सरहदों के मुहाफिज हमा वक्त जागते हैं। पूरी कौम इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन ये भूल गया कि ये वही कौम है जिसे सानहे मजीद मजबूत और मुत्तहिद करते हैं। पूरी कौम भरपूर जोश और जज्बे से लबरेज अपनी जान, अपना माल, सब अपनी धरती की हिफाजत पर कुर्बान करने के लिए हर दम तैयार है। घुस के मारेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह हमने जहाज गिराए हैं उनके, और इसी तरह उनके मुल्क का मुल्क गिरा देंगे हम। अगर शुरू उन्होंने किया तो खत्म हम करेंगे। तारीख गवाह है कि जब भी ऐसा वक्त आया, अफवाज पाकिस्तान ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, माओं ने फख्र से अपने बेटे सरहदों पर रवाना किए, तो वहीं अवाम ने अपनी जमा पूंजी, औरतों ने अपने जेवर, बच्चों ने वालदैन से मिलने वाला जेब खर्च मुल्क पर निछावर किया। कैसे भी हालात हो, हम अपनी पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं। इस परचम की हिफाजत करना बहुत अच्छे से आता है। इस मुल्क की हिफाजत के लिए हम अपना जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे। चाहे दिन हो या रात हो, पाकिस्तानी फौज अपने मुल्क की हिफाजत करती है। हम उसको मुंह तोड़ के जवाब लेंगे। अगर हमारी फौज को हमारी जरूरत पड़ी तो हम शहीद हो जाएंगे। ये मत देखे कि हम छोटे हैं, हमारे सीनों में ईमान है। आज भी पूरी कौम भारतीय नंगी जारहियत, उसकी कमजरफी और हटदर्मी का जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन जान ले कि जंगें सिर्फ वसाइल और तनख्वाहदार सिपाहियों से नहीं, जज्बों से लड़ी जाती हैं। हमारे पास जदीद वसाइल भी हैं और शहादत के जज्बे से लबरेज फौज भी। और हमारी फौज के हवाले से याद रखो, ए दुश्मना कोलो की डरना, ए मौत कोलो भी डर देना। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। लोधरा के शहरियों ने पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ने के अज़्म का इरादा किया है। इस पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला डाहा। लोधरा में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती के लिए एक अजीम अलशान रैली निकाली गई। ये रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लोधरा से शुरू हुई और गौसिया चौक पर आकर इख्तिताम पजीर हुई। अपनी पाक आर्मी को खराज तहसीन पेश करते हैं जो उन्होंने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तमाम ज़िला लोधरा की तमाम अवाम अपनी बहादुर फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने दुश्मन को दुश्मन के घर में घुस के मारा और उसके नापाक अजाइम का मुंह तोड़ जवाब दिया। जो बुज़दिली दिखाई है मोदी ने रात, इंडिया फौज ने, और इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब दिया है उसका पाक आर्मी ने। हम पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के तमाम वकला, तमाम आवाम उनके साथ खड़ी है और हम पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जान की बाजी भी दे देंगे। ज़िले इंतज़ामिया लोधरा की जानिब से मुनक्कद की गई ये रैली अवाम और अफवाज के दरमियान मजबूत रिश्ते की एक जिंदा मिसाल है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर तमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। कोट अब्दुल मालिक से निकाली जाने वाली रैली की क़यादत रुकने पंजाब असेंबली राना ताहिर इकबाल कर रहे हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं इस्लाम गाजी से। जी इस्लाम, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान नून के ज़ेर कोट अब्दुल मालिक में पाकिस्तानी अफवाज से इज़हार मोहब्बत के लिए उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर तमाम रैली निकाली गई है। रैली के शुरका ने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी परचम, पार्टी परचम उठाकर, पैना फ्लैक्सेस उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाकर पाकिस्तानी अफवाज से इज़हार मोहब्बत किया है। हमें अपनी पाक फौज के ऊपर फख्र है और ये हम आज आपने लोगों के जज्बात देख लिए हैं और हमें इस चीज के ऊपर फख्र है कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। तो हम अपने मुल्क का दिफा करना चाहते हैं और अगर हमें जरूरत पड़े हम अपनी फौज के एक अल्फाज के ऊपर हम लब्बैक कह के अपने मुल्क के दिफा के लिए हम भी सामने आएंगे। अगर मुल्क को कभी जरूरत पड़े तो ये खवातीन कभी भी अपने मुल्क की सालमियत पे कुर्बान होने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला पाक फौज दे नाल साडा हर पाकिस्तानी मुजाहिद है। पाकिस्तान जिंदाबाद,
पाक फौज जिंदाबाद। हमारी हुकूमत भी जिंदाबाद है, पाक आर्मी भी जिंदाबाद है और अवाम भी जिंदाबाद है। अब जब आपने ये हरकत कर ली है, इंशाल्लाह आपकी आने वाली 100 नस्लें हमारे जो आपको याद रखेंगी। इंडिया को ये पता चल जाएगा कि किस कौम से उसका पाला पड़ा है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओकाड़ा के इलाके हवेली लखा के पाक भारत सुलेमान की बॉर्डर के करीब बसने वाले शहरियों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा है कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी फतहुल्लाह। आज बिल्कुल भारत ने एक मरतबा फिर जो है वो रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए 6 और 7 मई की दरमियानी शब जो है वतन अजीज़ के मुख्तलिफ मकामात पे बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जो है वो करते हुए अपने हरकत को जो है वो मज़ीद ज़्यादा बढ़ाया है, जिसका पाकिस्तानी अफवाज ने बेहतरीन और बर वक्त जो है वो जवाब दिया है। तो मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के एक सरहदी इलाके सुलेमानकी सेक्टर के करीब जो है वो मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग जो है वो मौजूद होंगे, उनसे हम मज़ीद जानते हैं कि इस हवाले से वो जो है वो क्या जज्बात रखते हैं। हिंदुस्तान ने अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए बुज़दिलों की तरह रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान की नेफ्ती अवाम पर हमला करके उसने अपने कमीनापन का सबूत दिया। हम अपनी पाक फौज के एक काल पर फौरन हाजिर होंगे और उससे शाना बिशाना लड़ेंगे और इस दुश्मन को जो मजमूम मकासद है इनको हम खाक में मिला देंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अब भी खड़े हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। लोगों का यह कहना है कि वो अपनी धरती माँ के लिए मर मिटने तक जो है वो तैयार हैं और दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए हर वक्त जो है वो हम वक्त तैयार हैं और किसी भी जारहियत का दुश्मन ने अगर जो है वो यहाँ पे कुछ कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए टांग की आवाम भी सड़कों पर निकल आई और डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे ज़ाफरान मयानी से। भारतीय जारहियत के खिलाफ और पाक फौज की हिमायत में टांग में भी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल तलबा, समाजी शख्सियात और जिली अफसरान ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था मुल्क की दिफा को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इस रैली का मकसद ये है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई कल रात से की है तो इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं, हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की तो हम अपने जो हमारी ज़मीन है उसकी एक इंच की हिफाजत करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। उस हमले का भरपूर जवाब दिया गया है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन इंडिया की जानिब से ये हमला इंतहाई शर्मनाक काबिल मज़म्मत है और ये जो रैली है जो आवाम निकली हुई है इस बात का सबूत है कि पूरी कौम पाकिस्तान की पूरी कौम मुतहिद है, अपने अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अपने पाक फौज को ये पैगाम दूंगा, करो न फिक्र, ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, आपके चरागों में अपना खून आपको हम पेश करेंगे। रैली के इख्तिताम पर शोहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआ की गई। ज़ाफरान मयानी, PTV न्यूज़, टांग। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान कश्मीर, शिमाल और मशरकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी, जनूबी बलूचिस्तान और जनूब मशरकी सिंध में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की भी तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब और शिमाल बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो पडीदन, दालबंदीन, नौकंडी 44, जैकबाबाद और दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।